हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो before we begin the chapter, before we start seeing all those topics, let us first look at the contribution of the scientist G.N. Ramachandran. Okay? So in our surrounding we see many things, living as well as non-living, right? तो non-living versus living में difference पता कैसे चलता है? The living things are composed of cells and all living things are composed of cells, and cell is the basic unit of life. All living organisms जब बोलते हैं तो living organisms can be unicellular or multicellular. अब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या है? व्हाट इज अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म? अ सिंगल सेल। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो या सिंगल सेल हो, दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग। तो व्हाट इज इट दैट मेक्स देम इंडिपेंडेंट, या अ कंप्लीट फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। Anything less than this, anything less than a cell cannot ensure a complete independent life, right? Now discovery of cell. In discovery of cell, in your book, these two are mentioned. A.V. Leeuwenhoek first saw, described and sketched a living cell. He was not the first to discover. उनसे पहले भी बहुत लोगों ने देखा था, but his contribution was description and sketching. So who coined the term cell? It was Robert Hooke. He had observed cork cells and he saw new structures like this. Okay, so according to him these looked like the cell of a jail. That is why he had called them as cell. उसके बाद से तो हम सब cell ही बुलाते हैं, but this is not mentioned in your book. Anyways, the second discovery is that Robert Brown discovered nucleus. Okay? इसके बाद हम देखते हैं cell theory. So now cell theory. Cell theory was proposed by two German scientists. One was a botanist, another was a zoologist. So let us first look कि उनका study और observation क्या था, based on which they proposed the cell theory. So in 1838, Matthias Schleiden, who was a German botanist, he studied plants, and his conclusion, his observation was all plants are composed of different kind of cells which form tissues of the plants. Clear? And in 1839, Theodor Schwann, a German zoologist, he studied both animals as well as plants. Based on his study on the animals, what was his conclusion? Cells had thin outer layer which we know today as plasma membrane. So he had referred to the presence of that delimiting membrane, but the name was not given. Plasma membrane name बाद में दिया गया. Okay? Studied plants, और plants को study करके what was his conclusion? Presence of cell wall unique to plants. Then they both, S and S, they came and they combined these observations and put forward the cell theory. Cell theory, the original, the old one, is animals and plants are composed of cells and their products. Okay? बट इस वाले थ्योरी में एक डिसएडवांटेज था या एक ड्रॉबैक था. इट डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड. Few years later, in the year 1855, Rudolf Virchow, he studied the cell theory and he modified it, and he proposed the cell theory in its new form which we know the cell theory today. So let's look at it. The Rudolf Virchow in 1855, he modified the cell theory, and what were his words? He had proposed omnis cellula e cellula, means
cells arise from pre-existing cells. Okay, he modified the cell theory, and what did he propose? All living organisms are made of cell and their products. ये तो वही बात है जो श्लेडन एंड श्वान ने कहा था. This was the addition. Cells arise from pre-existing cells. Okay, because यही drawback था कि cells arise कहाँ से करते हैं. So this was his contribution. Okay, and please remember the points in this way, because अगर MCQs में आ जा सकता है कि रूडोल्फ वर्चो ने मॉडिफाई किया था, बट व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन, विच पार्ट, ये लाइन है या ये लाइन है. सो प्लीज रिमेंबर इन योर नोट्स यू कैन राइट ओरिजिनल बाय SNS, दिस इज द न्यू वन और एडिशनल वन. ओके, सो विद दिस वी आर डन विथ सेल थ्योरी. इसके बाद है एन ओवरव्यू ऑफ सेल. एन ओवरव्यू ऑफ सेल में मैं इसको लेबल करती जाऊंगी, और एक तरफ प्लांट और एनिमल सेल कहाँ क्या प्रेजेंट है, आई कीप ऑन राइटिंग दैट. ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज दिस आउटर मोस्ट रिजिड लेयर कॉल्ड सेल वन. वेयर डू वी सी प्लांट सेल, नेरा, blue green algae, some protists, fungi, right? And this one is the plasma membrane. ये जो मेम्ब्रेन है, दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल एंड दिस इज परमिएबल. ओके, ये जो है दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल. वेयर डू वी फाइंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन? वी फाइंड इन ऑल ऑफ देम प्लस एनिमल सेल्स. ऑल सेल्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर किंगडम्स. When I say other kingdom, Protista, Monera भी इसमें समा जा रहा है. Protista, Monera and fungi. Okay? सेल वॉल खाली कहाँ नहीं होता? इस साइड में, माइकोप्लाज्मा में नहीं होता. फिर इनसाइड द मेम्ब्रेन देयर इज अ सेमी फ्लूइड थिंग. देयर इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स. फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द लिमिटेशन. Okay, from here to here, it is called cytoplasm. Clear? And this is the site where all the chemical reactions that keep the cell in a living state occur. और ये वही है where all membrane bound organelles are found. Clear? और यहाँ पे जो ये सेंट्रल स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड, राइट? और मैं इसको नीचे लिखती हूँ. लेट मी राइट इट डाउन हियर. दिस इज द न्यूक्लियस. क्लियर? Now this semi-fluid matrix called cytoplasm plus nucleus is the protoplasm. Okay, so protoplasm is यहाँ से यहाँ तक. Everything inside the membrane is protoplasm. Clear? बेस्ड ऑन न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस में वी हैव द जेनेटिक मटेरियल. ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी ओवरव्यू, जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ सेल इन जनरल. और प्लांट्स और एनिमल्स का भी मैं डिफरेंसेस समझाते जा रही हूँ. ये हो गया प्रोटोप्लाज्म. नाउ डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज.
So cell with nucleus and membrane bound organelles are eukaryotic cell. Clear? Now cell without these two are prokaryotic cell. तो prokaryotic cell में क्या क्या होता है? Cell wall, plasma membrane, genetic material, cytoplasm, right? और यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस तो होता ही है एंड अदर ऑर्गेनेल्स. इन प्लांट सेल्स सेल वॉल प्लस अबव, राइट? नाउ सेल यूकेरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली विच इज फाउंड इन बोथ. सो इन दोनों के लिए राइबोसोम इज कॉमन टू बोथ. 70S in prokaryotes, 80S in eukaryotes. Clear? Other than ribosome, animal cells contain one more organelle which is not bounded by any membrane, and that is called centrosome. Okay? Clear? So this is the overview of a cell. Which are the parts which are found in plants, which are the parts found in animals, prokaryote और eukaryote का division क्या क्या होता है. In your book for plant cell उन्होंने onion cell peel के cell का example दिया है, and for animal cell human chick cell. Clear? Now we will look into a prokaryotic cell. But prokaryotic cell देखने से पहले there are some description of different sizes and shapes of cell. उसको भी एक बार देख लेते हैं. Now in this table you will find एक तरफ है cell sizes, दूसरी तरफ है cell shapes that are mentioned in your book. Now cell sizes का क्या है? First they have begun with mycoplasma and they are telling that this is the smallest living cell. Okay? इसका measurement दिया हुआ है 0.3 micrometer. Bacteria 3 to 5, RBC 7 micrometer in diameter. Interestingly, if you look into the table, let me tell you the table number, diagram number I mean. If you look in figure number 8.2, PPLO का 0.1 micrometer लिखा हुआ है. Now please keep these two things in mind. PPLO is actually a type of mycoplasma only. It is included in this genus, but अलग से दिया हुआ है. तो अगर MCQs आ जाता है where they ask you, where they do not give these dimensions, they just mention this 4 names and ask you to select which is the smallest type, then please go for this one. For students who are watching my video and who are watching this particular line, बिकॉज अब तक मैं बहुत कम कमेंट्स पा रही हूँ स्टूडेंट्स से, बहुत कम रिस्पॉन्स पा रही हूँ. प्लीज़ कीप दिस इन माइंड एंड प्लीज़ नोट इट डाउन. तब PPLO को ही सिलेक्ट करना है. ओके? इन आपके चैप्टर में ये दोनों जगह मेजरमेंट कहीं ये दिया हुआ है दिस इज स्मॉलर देन दिस, बट लिखा हुआ है कि ये स्मॉलेस्ट है. फिर वायरस का भी साइज दिया हुआ है, बट वायरस इज ए सेल्यूलर. वाई? बिकॉज आउटसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये इनर्ट स्टेट में रहते हैं. तो ये लिविंग सेल अगर आ जाए तो डोंट मार्क दिस. ओके? लार्जेस्ट सिंगल सेल इज ऑस्ट्रिच एंड लॉन्गेस्ट सेल्स इन ह्यूमन इज द नर्व सेल्स. अब इस तरफ आते हैं शेप्स. नाउ सेल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. तो उनका शेप डिपेंड करता है ऑन द फंक्शंस दैट दे आर परफॉर्मिंग. ओके?
तो आरबीसी का क्या है, बाई कॉन्केव, ये दोनों तरफ से ही कॉन्केव, थोड़ा सा ढाल होता है। ओके, मेरे डायग्राम्स इतने अच्छे नहीं है, बट प्लीज रेफर टू योर बुक। WBC, white blood cells are amoeboid columnar epithelium cells, very compactly arranged column like, right? ये ciliated भी हो सकते हैं। Tracheids, they are elongated and they are actually dead। इनके surface में ये pits होता है, प्रोटोप्लास्ट होता नहीं है। So यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि cells are supposed to perform metabolic activities, right? And all living organisms are made up of cell and their products, ये cell theory में कहा है। So one of the disadvantage of cell theory is कि ऐसे भी cells है living organism में which are actually dead, जहाँ पे प्रोटोप्लास्ट है नहीं, but they are doing some metabolic functions, वो कुछ ना कुछ functions कर रहे हैं। So that is a disadvantage of cell theory। As such ये आपके syllabus में mention तो नहीं किया हुआ है, but when you see cells like this, याद आ गया इसीलिए बोल दी। ओके, फिर राउंड एंड ओवल मेसोफिल सेल्स में जैसे हम देख सकते हैं, इट कैन बी राउंड या ओवल इन आउटलाइन। ओके, अब हम प्रोकैरियोटिक सेल का देखते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन विथ अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल फाउंड इन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा। एंड इन योर बुक मोस्ट प्रोबेबली PPLO को भी अलग से मेंशन किया हुआ है। सो ऑलवेज ठीक है, अब मेंशन किया हुआ है तो अलग से लिख लो, बट इट्स द सेम थिंग। ओके, फर्स्ट आई वुड लाइक टू टीच यू बैक्टीरिया का दो क्लासेस, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, बिफोर डिगिंग डीप इनटू द ओवरव्यू ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। फिर मैं बाकी दूसरे चीज़ें पढ़ाऊंगी। So depending on how they stain with Gram's stain, Gram's stain is actually crystal violet या gentian violet stain। ओके, अब बैक्टीरिया को उस स्टेन से स्टेन किया जाता है, देन इट इज़ ट्रीटेड विथ 5% आयोडीन, उसे पहले पानी से वॉश किया जाता है, फिर अल्कोहल या एसीटोन से। उसके बाद अगर वो वायलेट कलर रिटेन कर जाता है, देन दोज बैक्टीरिया आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, दे रिटेन द स्टेन। एग्जाम्पल इज बैसिलस सबटिलाई। और अगर आफ्टर वॉशिंग दे डोंट रिटेन द स्टेन, दे आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, डज नॉट रिटेन द स्टेन। एग्जाम्पल इज एस्चेरिचिया कोली या ई कोलाई। ओके, और इन्हें सैफ्रानिन विच इज़ अ रेड कलर डाई, उसे स्टेन किया जाता है। नाउ लेट अस लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल सबसे कहाँ देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया आर द मेन प्रोकैरियोटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सो बैक्टीरिया are the main prokaryotic cells or the main representatives of the prokaryotic cells, right? Blue green algae को भी हम अलग से list करते हैं, but according to the Whitaker's classification, blue green algae or cyanobacteria are now placed under Monera, right? तो bacterial cell shapes, 4 types of bacterial cell shapes are found. What are they? So the 4 basic shapes of bacteria are coccus, which is spherical, bacillus rod-like, spirulum spiral, and vibrio comma-like. Clear? Now यहाँ पे I have written all the factors, all the things that are found or that makes the overview of prokaryotic cell. पहले we will go through this, पहले हम ये देख लेंगे, उसके बाद हम इन्हें डिटेल्स में देखेंगे। ओके, सो ये एक समरी है। लेट्स बिगिन। सेल आउटर मोस्ट, हम एक प्रोकैरियोटिक सेल को ले लिया, बाहर से अंदर की ओर अगर जाते हैं तो व्हाट आर द थिंग्स वी फाइंड। सेल हैज आउटर मोस्ट लेयर कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर है सेल वॉल। एक्सेप्शन इज माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में ये दो नहीं होता। ओके, फिर उसके अंदर जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन is selectively permeable. The structure of plasma membrane is much like the structure of plasma membrane of eukaryotic cells. और इन तीनों को मिला के it is referred to as cell envelope. Okay? फिर plasma membrane shows infoldings which are called mesosomes.
मेसोसोम्स में क्या, they can be of different shapes. Depending on that, it can be vesicular in shape, tubule shape हो सकता है या lamellar like हो सकता है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म के अंदर दे प्रोट्रूड. ओके, और मेसोसोम्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं? दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन and distribution of the DNA to the daughter cells, respiration, secretion, and because this is nothing but an extension of the plasma membrane, so it increases the surface area of the plasma membrane. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोकैरियोटिक सेल्स में काफ़ी एंजाइम लगे हुए होते हैं, सो नेचुरली इट ऑल्सो इंक्रीजेज द एंजाइमेटिक कंटेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं, वी फाइंड दिस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में क्या क्या है? न्यूक्लियोइड, which is what? The nuclear-like structure without any membrane. What does it consist of? It consists of single circular genetic DNA, supercoiled DNA. Okay. Plasmid, which is a non-genomic DNA. Ribosome, वो एक membraneless organelle है जो मिलता है, and then some non-living molecular structures which are called inclusion bodies. फिर इसके अलावा सेल में एक इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, वो हर बैक्टीरियल या हर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता. कहाँ मिलता है? इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एंड दे आर कॉल्ड क्रोमाटोफोर्स. क्रोमा मीन्स व्हाट? कलर. सो दे कंटेन द पिगमेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द फोटोसिंथेसिस. ओके, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के जो पिगमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे लगा हुआ होता है. एंड दिस मेम्ब्रेन सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम मेसोसोम. प्लीज मार्क इट डाउन. ओके, इसके अलावा फ्लैजेला, इफ द बैक्टीरिया इज मोटाइल, पीली एंड फिम्ब्री, दीज आर द एक्सटेंशन स्ट्रक्चर्स दैट वी कैन सी इन अ प्रोकैरियोटिक सेल. सो दिस वॉज अ लिस्ट ऑफ द ओवरव्यू ऑफ द सेल. अब हम सेल एनवेलप से शुरू करके डिटेल्स में देखते हैं. ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, और यहाँ पे इसका लेबलिंग एंड ऑल दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस screen, we are going to study in details. So let us begin here with filament. Only if the bacterial cell is motile, अगर वो motile है तब भी filament मिलता है. Filament, fimbri and pili, these are the extension structures of a prokaryotic cell. तो सबसे पहले हम flagella का देखते हैं. Flagella is made up of a special protein called flagellin. उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सी इट इज एम्बेडेड इन द सेल एनवेलप. ये जो थिक पार्ट एट द बेस है जिससे कि ये इस सेल पे अटैच किया हुआ है, घुसाया हुआ है. ओके, दैट पार्ट इज द बेसल बॉडी. क्लियर? फिर बेसल बॉडी से ये जो कर्व हो रहा है, दिस दैट इज द हुक, और उसके ऊपर से ये लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर इज द फिलामेंट. या फिलामेंट के अंदर जस्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन लंबा लंबा अरेंज किया हुआ है. ओके, और यही वो है जो विप्लैश जैसा मूवमेंट दिखाता है. क्लियर है? सो दिस इज फ्लैजेला एम्बेडेड विद इन द एंटायर सेल एनवेलप. तीनों के तीनों लेयर्स को पियर्स करते हैं. प्लीज लुक एट द डायग्राम एंड कीप इट इन माइंड. फिर एक एक्सटेंशन होता है फिम्ब्री. नाउ फ्लैजेला, द नंबर ऑफ फ्लैजेला इज नॉट गोइंग टू बी वेरी हाई, इट्स गोइंग टू बी फ्यू इन नंबर्स. ओके, फिम्ब्री, ये एक्सटेंशंस दे हेल्प द बैक्टीरियल सेल इन अटैचिंग टू द सरफेस. इट कैन बी द सरफेस ऑफ द होस्ट और सरफेस ऑफ द स्ट्रीम्स और द सबस्ट्रेट वेर एवर दे आर ग्रोइंग. फिर एक और तरह का एक्सटेंशन होता है विच इज कॉल्ड पीली और पाइली. इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड पीलिन. इसका क्या फंक्शन होता है? इन मेनी बैक्टीरियल सेल्स सम काइंड ऑफ अ डीएनए ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ, इन द नेम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, बट बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ अ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल होता है. तब एक कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म होता है, दैट इज वेयर द पीली
plays its role. Okay, that is the function of pili conjugation, formation of conjugation tube, and it also decides on the fertility and the mating factors for bacterial cell. फिर हम इनके सेल एनवेलप को पहले देखते हैं. प्लीज कम डाउन हियर. सबसे बाहर है ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स क्या? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर. इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. स्लाइम लेयर हो सकते. इफ इट इज ऑफ स्लाइम लेयर, अगर स्लाइमी लेयर का कंटेंट ज़्यादा है, इट इज लूज शीथ लाइक, तो उसको स्लाइम लेयर बोला जाता है. हियर इट इज रिच इन एमिनो एसिड्स एंड पेप्टिडोग्लाइकन्स. या तो फिर इट कैन बी ऑफ म्यूसिलेजेनस इन नेचर, वेयर द म्यूसिलेज हैज बिकम वेरी हार्ड एंड थिक एंड टफ, एंड देयर इट इज कॉल्ड कैप्सूल. इन एनी ऑफ द केसेस, चाहे ऐसा हो ग्लाइकोकैलिक्स या ऐसा हो, स्लाइम लेयर हो या कैप्सूल हो, इट्स फंक्शन is that it gives sticky character to the bacteria, it prevents desiccation of the bacterial cell, it saves it from phagocytes, viruses, etc. Okay? फिर चलते हैं सेल वॉल पे. सेल वॉल इज रिजिड structure, we all know. What does it help? What is its contribution? It helps in maintaining the shape of the cell and it supports it. How does it do? Support मतलब it prevents the cell from bursting. अब एक सेल burst कब करेगा? When it is placed in a hypotonic environment, right? या it prevents it from collapsing. कोलैप्स कब करता है? व्हेन इट इज द इन्वायरमेंट इज हाइपरटोनिक. फिर अंदर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सिलेक्टिवली परमिएबल है, वी ऑल नो. द प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ द यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, तो इसका स्ट्रक्चरल डिटेल्स हम जब यूकैरियोट पढ़ेंगे तब जान लेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ कंट्रीब्यूशन क्या है? इट फॉर्म्स मेसोसोम. मेसोसोम के फंक्शंस हमने पहले ही देख लिए, बट लेट अस लुक एट द मेसोसोम हियर. सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये इसका इनफोल्डिंग है और ये कुछ हद तक लैमेला लाइक है, राइट? इसके फंक्शंस, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब इंक्रीज कर रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितने भी एंजाइमेटिक कंटेंट हो या राइबोसोम्स जो लगे हुए होते हैं, उनका भी कंटेंट बढ़ जाता है, राइट? इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, secretion, cell wall formation, DNA replication and distribution of the DNA to the newly formed daughter cells. Clear? मेसोसोम हो गया. अब हम न्यूक्लियड में जाते हैं. What is न्यूक्लियड? यहाँ पे membrane bound nucleus तो है नहीं. So what does it have? It has a single supercoiled circular chromosome. No membrane, no histone proteins. यहाँ पे कोई histone protein से इसको रोक के रख, इसको पैकेजिंग किया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है. दैट इज वाई यहाँ पे क्रोमोसोम को या जेनेटिक मटेरियल को नेकेड कहा जाता है. तो न्यूक्लियड क्या है? न्यूक्लियड इज जस्ट दैट सुपरकॉइल्ड क्रोमोसोम एंड सम आरएनए. ओके, ये एक ही सिंगल क्रोमोसोम है एंड इट इज रेफर्ड टू एज न्यूक्लियड. न्यूक्लियर ये है द जेनेटिक डीएनए. फिर एक्स्ट्रा जेनेटिक डीएनए या नॉन जेनोमिक डीएनए पे हम चलते हैं. नॉन जेनोमिक डीएनए मीन्स व्हाट? इट इज़ नॉट गोइंग टू वो जेनोम्स, वो डीएनए वाला, वो क्रोमोसोम वाला काम नहीं करेगा, उसका काम कुछ और होता है. तो व्हाट इज इट स्ट्रक्चर? इट इज सिंगल सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड. इफ यू लुक क्लोजली, एक सर्कल है, डबल स्ट्रैंडेड है. So what is plasmid? Non-genomic self-replicating. Self-replicating मतलब क्या? इसका replication और इसका replication अलग अलग होता है. They are replications of independent of each other. Double-stranded and circular single DNA होता है. What is its function? What is its role? It imparts phenotypical features like antibiotic resistance, fertility factors, etc. Okay? फिर आते हैं यहाँ पे खाली एक ही तरह का, और ये तो साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म में एक ही ऑर्गेनेली यहाँ देखने को मिलता है, विच इज राइबोसोम.
अब ribosome is of what type? 70S type. Now ribosome, do you see the structure? This is called polysome. Polysome क्या? One mRNA plus many ribosomes. Okay? ये एक RNA है, उसके ऊपर many ribosomes are attached. And they are doing what? They are synthesizing the proteins. Now ribosome जो है यहाँ से, if you come down, they are present on the plasma membrane as well as freely in the cytoplasm. So plasma membrane, you can think of them as the ribosome या any other important enzymes. Okay? और साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी हो, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पे हो या साइटोप्लाज्म में, सिंगल हो या पॉलीसोम हो, इट्स टाइप इन प्रोकैरियोटिक सेल इज गोइंग टू बी 70S. क्लियर? एक है क्रोमैटोफोर्स. मैंने यहाँ पे एक इंट्रा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है. दिस इज कॉल्ड क्रोमैटोफोर. ये ग्रीन एंड पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही खाली पाया जाता है. एंड व्हाट डू दे डू? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट और थाइलाकॉइड स्ट्रोमा वैसा होता नहीं है जैसा प्लांट सेल में देखने को मिलता है, बट दे नीड द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, राइट? सो हु इज गोइंग टू कंटेन? दैट इज वाई दे हैव दिस इंट्रा मेम्ब्रेनस सिस्टम, एंड दिस मेम्ब्रेनस फोल्डिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मेसोसोम. प्लीज कीप दैट इन माइंड. उसको क्रोमैटोफोर बोला जाता है. ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया में होता है. दे कंटेन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. क्या है? जैसे विरिडिन, परप्यूरिन, ये सब. ओके. नाउ साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलिस होता नहीं है. यू हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड देन समथिंग कॉल्ड एज इंक्लूशन बॉडी. वो इंक्लूशन बॉडी कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. फूड रिजर्व्स सच एज साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स. क्लियर? या तो फिर अ गैस वैक्यूल. गैस वैक्यूल ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलता है. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है. इट कंटेन्स वेरियस गैशियस प्रोडक्ट्स. एंड अदर इनऑर्गेनिक इंक्लूशन बॉडीज सच एज सल्फेट ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स. ओके. सो दीज आर एक्चुअली नॉन लिविंग थिंग्स. क्लियर है? सो विद दिस आई हैव covered everything that is given in the prokaryotic cell. I hope I have not missed anything. And बच्चों, ये स्टाइल में पढ़ाने का, this way of teaching you, how do you like it? Please let me know in the comment section. And your comments are really going to help me. Okay? So with this we are done with the prokaryotic cell. इसके बाद है eukaryotic cell. तो eukaryotic cell के लिए हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे. So that's it for today, and I'm going to see you very soon with the next part of this video. For students who have not yet subscribed to my channel, who have not yet liked my videos, please support me by liking my videos. Please don't do a kanjusi, and please comment. Okay? And I'm going to see you very soon. Please take care of yourself and study hard. Bye.